Hello students, welcome you all to our YouTube channel. Today we are going to deep dive into the NISM Series 10A Investment Advisor Level 1. So here we'll get some insight about the NISM Series 10A. We'll understand the exam pattern and the passing percentage. We'll also understand exactly what is going to be the entire syllabus, how the case studies are going to play the important part in the entire coursework, and how we are going to help you with this particular preparation. Before I start, let me thank you all for appreciating our NISM series 15 research analyst. Thanks for giving it a lot of love, and your dedication has actually given that result that where most of the students are getting a very fabulous marks and passing in very first attempt. I never guarantee my students about the 100% passing, but yes, you have proved yourself by delivering a very positive result. I hope you will give the same love to this particular course as well. So let's begin. So आपके स्क्रीन पे जो है NISM सीरीज 10A इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेशन एग्जाम के डिटेल्स है। NISM सीरीज 10A इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेशन एग्जाम जो है वो रिवाइज की गई है विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 28, 2023। तो जो भी कोर्स आपको अभी मिलेगा वो कंप्लीटली अपडेटेड कोर्स है एंड नॉट ओनली वन सर्टिफिकेशन, दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्टिफिकेशन, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 10A और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 2 10B. So students, both these examinations are mandatory for individuals or firms to meet the regulatory requirement set by SEBI, that is the Securities and Exchange Board of India, for investment advisors. So I hope you understand that how important this exam is going to be for you. तो एक बार असेसमेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एग्जाम जो है 150 मार्क्स की है। फीस जो है यहाँ पे NISM की जो सर्टिफिकेशन की फीस है दैट इज गोइंग टू बी 3000 रुपीज एंड 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में वो है 135 क्वेश्चंस, जिसमें से 90 MCQ होंगे, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। दैट मीन्स डिपेंड करता है कि 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है या ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स से 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। 90 MCQs है, 1 मार्क का 1 MCQ है, 90 into 1 दैट इज 90 मार्क्स के MCQs आएंगे। उसके बाद आपको 6 केस स्टडीज आएंगे, दैट मीन्स 6 केसेस आएंगे। हर एक केस स्टडी जो है वहां पे 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहेगा। दैट मीन्स 6 into 5 into 1, तो 30 मार्क्स के 6 केसेस आएंगे और हर केस स्टडी का जो एक एक क्वेश्चन है उसका 1 मार्क रहेगा। उसके बाद जो है 3 केस स्टडीज ऐसी आएंगी जहां पे हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क रहेंगे। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स ईच। दैट मीन्स 3 into 5 into 2 equals to 20 मार्क्स। तो 90 मार्क्स के MCQ, 6 केसेस के जो है वो 30 मार्क्स है, 3 केसेस जो है दैट कैरीज 20 मार्क्स। तो कलेक्टिवली ये आते हैं 150 मार्क्स। द पासिंग स्कोर इन द एग्जामिनेशन एज यू ऑल नो दैट इज 60%, जैसे रिसर्च एनालिस्ट के केस में है या डेरिवेटिव एग्जामिनेशन के केस में है, तो पासिंग परसेंटेज जो है वो 60% है। दैट मीन्स आउट ऑफ 150 मार्क्स यू शुड गेट मिनिमम 90 मार्क्स फॉर पासिंग। और नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज 25% नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। तो अगर कोई क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड रखते हो तो आपका 1 मार्क कटता है, लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो रॉन्ग गया तो आपका 1.25 मार्क्स कटेगा। नाउ स्टूडेंट्स, क्विकली रन थ्रू द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 curriculum. The entire curriculum has been divided into 6 module and altogether there are 20 chapters. So it is very extensive program. First module we are talking about the personal financial planning. Module 2 speaks about the Indian financial markets. Module 3 speaks about the investment products. Module 4 speaks about the investment through managed portfolio. Module 5, we are going to learn about the portfolio construction, performance monitoring and evaluation. And module 6, we are going to explore the operations, regulatory requirement, compliance and ethics. Material आपको कहाँ पे मिल सकता है? फ्री मटेरियल, ये भी आपको व्यू स्टडी मटेरियल ये सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे NISM सर्टिफिकेशन वर्कबुक के लिए आपको नाम, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल, सिटी और स्टेट सेलेक्ट करके प्रोसीड करना है। आपको ई वर्कबुक जो है मिल जाएगा। बट मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि NISM की जो वर्कबुक है वो बहुत ब्यूटीफुली
डिजाइन किए हुए हैं। तो अगर पॉसिबल है आपसे तो आप इसका जो ऑफलाइन वर्जन है, दैट मीन्स आपका जो फिजिकल कॉपी है आपका बुक का, वो आप ऑनलाइन कहीं से भी, या तो फिर आप कोई बुक स्टोर में जाके खरीद सकते हैं, या तो अमेजोन से भी ये आ जाएगा, तो वो आप अपने पास रखिए। एक हाइलाइटर आपके पास रखिए, ताकि जो भी सेंटेंसेस आपको लगते हैं, बिकॉज हम कभी भी ये चीज डिनाई नहीं करेंगे कि आपको एनआईएसएम की वर्कबुक नहीं पढ़नी है। हमारा कोर्स या कोई भी कोर्स जो है वो एनआईएसएम की वर्कबुक को रिप्लेस नहीं कर सकता है। एनआईएसएम का जो वर्कबुक है वो बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्सेप्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम यहाँ पे आपको हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल बाय करना है तो यहाँ पे इन्होंने लिंक दी हुई है, वहां पे जाके टैक्समैन की बुक है, ये आप बाय कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई विल डेफिनेटली एडवाइज यू टू हैव योर ओन copy of this particular book. Along with this, definitely you require lot of practice to be done. बहुत सारे केस स्टडीज आपको करने पड़ेंगे। आई स्टिल रिमेम्बर जब भी हमने एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का प्रिपरेशन करवाया था, 8 मार्क के केस स्टडीज के लिए हमने ऑलमोस्ट 13 केस स्टडीज कवर की थी, 13 केस स्टडीज आपके पास सॉल्व करवाई थी, और बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे हमने कवर किए थे। तो इमेजिन व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 60 मार्क्स की केस स्टडी, व्हाट लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। तो यहाँ पे नॉट ओनली आपका स्टडी प्रिपरेशन, मेंटली ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ दैट यस आई एम गोइंग टू गिव माई 1 entire month or 1.5 month in order to prepare myself for the exam, बिकॉज फीस यहाँ पे कम नहीं है। फीस यहाँ पे 3,000 रुपए है, 3 घंटे आपके यहाँ पे जा रहे हैं। अगर आप एनआईएसएम सेंटर से दूर रहते हो तो ट्रैवलिंग का टाइम भी आप इसमें इंक्लूड कीजिए, दैट मीन्स टाइम, मनी, एनर्जी। तो ये सर्टिफिकेशन में मुझे पास होना है, ये होप, ये सारी चीजें जो है वो दाव पे लग रही है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर कोर्स जो है एज अ क्रैश कोर्स हमने डिजाइन किया है, जहाँ पे जो 20 चैप्टर्स है उसका चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट येस चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डेफिनेटली हम यहाँ पे कवर करेंगे। हम मॉक टेस्ट कवर करेंगे जहाँ पे मोर देन 800 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। हम वन लाइनर्स भी क्रिएट करेंगे, वन लाइनर्स भी कवर करेंगे, सो दैट जो एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम में काफी अच्छे से वर्क की थी, इसके लिए सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। यस, लेकिन चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन हम नहीं कवर कर रहे हैं, और रीजन ये है कि 20 चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर्स का अगर चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन हमने कवर कर दिया तो कोर्स बहुत लेंदी हो जाएगा, वीडियोस बहुत लेंदी हो जाएंगे, एंड यू माइट लूज योर इंटरेस्ट। अलॉन्ग विथ योर फिजिकल कॉपी पे बुक रीडिंग वेर यू विल बी हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज वेल। तो इतना प्रिपरेशन जो है आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर जो थियोरेटिकल टाइप के हैं, और यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करेंगे। Let's start with the very first question. How does tax planning impact financial planning? जब हम टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम यहाँ पे इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। जो भी पैसा हम अर्न करते हैं, जैसे हम सैलरी अर्न करते हैं तो हम यहाँ पे टैक्स पे करते हैं। हम अगर रेंटल इनकम अर्न करते हैं तो हम यहाँ पे भी टैक्स पे करते हैं, बिकॉज इट इज ए इनकम। अगर हमें कोई कैपिटल गेन हो रहा है इधर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे भी हम जो है टैक्स पे करते हैं। अगर हमें कोई बिजनेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट या इनकम आ रहा है, कोई प्रोफेशनल फीस आ रही है, तो यहाँ पे भी हम टैक्स पे करते हैं, और कोई अदर सोर्सेज से इनकम आ रहा है तो वहां पे टैक्स पे करते हैं। दैट मीन्स हम जो भी हम इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, और टैक्स पे करने की वजह से जो हमारा पोस्ट टैक्स रिटर्न है, दैट इज पोस्ट टैक्स इनकम जो है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारी परचेसिंग पावर जो है वो भी कम हो जाएगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में टैक्स प्लानिंग का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली स्पीकिंग हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में कवर करेंगे एग्जैक्टली हम टैक्स प्लानिंग कैसे करके हम हमारे जो टैक्सेस है वो रिड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे कहीं भी टैक्स इवेजन नहीं कर रहे, टैक्स हम अवॉइड नहीं कर रहे हैं पे करने को गवर्नमेंट को। तो जो भी टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें जो जो वेज बोले हुए हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके हमारे टैक्स जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं वो बर्डन, वो हम करेंगे। हम कहीं भी टैक्स एलिमिनेट नहीं कर रहे, टैक्स अवॉइडेंस नहीं कर रहे हैं। सो हाउ डज टैक्स प्लानिंग इम्पैक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग? अगर आपने टैक्स प्लानिंग सही नहीं की होगी तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू रिड्यूस योर पोस्ट टैक्स रिटर्न। ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, व्हाई डज रिटायरमेंट प्लानिंग कंसिडर अ क्रूशियल फाइनेंशियल गोल?
It isn't crucial to spend recklessly in retirement to ensure a comfortable retired life, to ignore savings. रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरेशन जो है ये बहुत ज़्यादा केयरफुल है अपने रिटायरमेंट को लेके। इन्हें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेके। मतलब पोस्ट रिटायरमेंट भी हमें यही टाइप की लाइफ जीनी है जो हम अभी जी रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब भी पोस्ट रिटायरमेंट में भी, दैट मीन्स रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम पॉसिबल है या एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम आ रहा है। वो कभी पॉसिबल होगा जब आपका एक्टिव वर्क लाइफ है, वहां पर आपने अच्छे से सेविंग्स किए हुए हैं, तो वो सेविंग्स जो भी है उसका रिटर्न आपको आपके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है जब भी आपका एक्टिव वर्क लाइफ है उसी में आपके सेविंग्स जो है वो आपको एक्यूमुलेट करने हैं। ये जनरेशन में मैंने पर्टिकुलरली देखा है जब भी वो जॉब ज्वाइन कर रहे हैं वो टाइम पे जब भी आपका इमरजेंसी फंड रेडी हो जाता है उसके बाद तुरंत ही ये लोग जो है इंश्योरेंस प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब अपना टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं जिसको हम मेडिक्लेम बोलते हैं, और उसके बाद रिटायरमेंट के लिए सेविंग शुरू करते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकते हैं? तो अगर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन उसके लिए बेटर है। लॉन्ग टर्म में जो है वो लार्ज कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, फोकस फंड है, ये भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं प्रोवाइडेड यू आर एक्चुअली चेकिंग द रिटर्न्स and the performance of the fund on a regular basis. So why are you considering retirement planning as a crucial financial goal? Because you do not want to compromise on your lifestyle post retirement. So option is to ensure a comfortable retired life. Next, in the financial planning process, what does the establishment and definition of client planner relationship involve? जब क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप होता है, जो एस्टैब्लिश होता है, तो वो होता है एक अग्रीमेंट के थ्रू कि एग्जैक्टली जो है क्लाइंट के लिए एक प्लानर, एक फाइनेंशियल प्लानर, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैसे टाइप का काम करने वाला है। तो ये सारी चीजें अग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड होती है। एक जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है इसके पहले ही डिफाइन होते हैं बिफोर यू एंटर इनटू एनी अग्रीमेंट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स, तो वो तो होगा ही, बट व्हेन इट इज अ क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप की बात होती है तो डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। स्टिल विल चेक अनदर ऑप्शंस एज वेल। इंप्लीमेंटिंग इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस, मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, ये उसका जो प्लानर है दैट इज फाइनेंशियल प्लानर के काम का एक हिस्सा है। लेकिन रिलेशनशिप जब एस्टैब्लिश करने की बात आती है तो इट इज गोइंग टू बी डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ engagement. Next, what is the primary purpose of goal setting in financial planning? Estimating current income, identifying liabilities, defining specific future financial objectives, and assessing past इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। पास्ट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि ऐसे भी पॉसिबल है कि आपने पहले के या पास्ट के इन्वेस्टमेंट जो है वो खुद ही से प्लान किए, अभी आपने किसी फाइनेंशियल प्लानर को या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को हायर किया होगा, तो ये इतना मैटर नहीं करेगा। एस्टिमेटिंग करंट इनकम, ओके, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, बट प्राइमरी पर्पज ऑफ गोल सेटिंग होगा डिफाइनिंग स्पेसिफिक फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। आपको एग्जैक्टली क्या अचीव करना है वो हिसाब से ही जो है आपका गोल सेटिंग होगा। ये गोल में गोल तो रहेगा ही, मतलब आपको क्या चाहिए, एट द सेम टाइम कभी चाहिए, और कितने का ये अमाउंट है, मतलब कितना अमाउंट इसके साथ इसके लिए रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे सेट की जाएगी। तो डिफाइनिंग स्पेसिफिक फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ गोल सेटिंग इन फाइनेंशियल प्लानिंग? डिफाइनिंग स्पेसिफिक फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। Next, how is net worth calculated? Asset plus liability, assets minus liabilities, liabilities minus assets, assets multiplied by liabilities और liabilities multiplied by assets। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ये करेक्ट आंसर है। कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था एसेट्स दैट मींस टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी गिव्स यू नेटवर्थ, और इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फाइनेंशियल एसेट्स एंड फिजिकल एसेट्स दोनों होंगे। तो फाइनेंशियल एसेट्स में आपकी इक्विटीज है, डेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह सब आती ही है, वहां पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाएंगी। और जो फिजिकल एसेट्स है यहाँ पे आपका गोल्ड दैट इज फिजिकल गोल्ड जो आपके पास है, प्लस आपके जो रियल इस्टेट्स वगैरह हैं और जो भी आपने प्रॉपर्टीज बनाई हुई वो सारी चीजें फिजिकल एसेट्स में आती है। आपके पास जो भी मतलब जेम्स है, आपके पास जो भी मतलब एक्सपेंसिव घड़ियां होगी या जो भी पेंटिंग होंगे, आर्ट वगैरह के स्कल्पचर्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल एसेट्स में आती है। लाइबिलिटीज में आएगी जो भी आपको बैंक के लोन देने हैं या इमीडिएट लाइबिलिटीज भी हो सकती है,
वो हो सकते हैं, जो भी आपने घर लेने के टाइम पे कुछ ईएमआई वगैरह चल रहे होंगे, वो सारी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज आती है। तो ये सारा पे करने के बाद जो भी बचा है दैट इज गोइंग टू बी इंडिविजुअल नेटवर्थ। तो क्या करना है आपको, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज दैट इज आउटसाइडर्स लाइबिलिटी विल गिव यू नेटवर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। एट द सेम टाइम कंपनी के लिए all total assets minus outsiders liability will give you a corporate net worth. Option is B. Next, which of the following is an example of physical asset? बैंक डिपॉजिट्स, इक्विटी शेयर, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड। बैंक में जो पैसे रहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो ये फिजिकल एसेट नहीं है। इक्विटी शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट में, आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं, तो ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं, तो ये भी फिजिकल फॉर्म ऑफ एसेट नहीं है। रियल एस्टेट जो है वो फिजिकल फॉर्म ऑफ एसेट है, तो ऑप्शन इज रियल एस्टेट। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि रियल एस्टेट है या प्रेशियस स्टोन्स हो सकते हैं, जेम्स हो सकते हैं, आर्ट हो सकते हैं आपके, या कोई स्कल्पचर्स है, गोल्ड ज्वेलरी है, या तो फिर वॉचेस है, एक्सपेंसिव वॉचेस वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो रियल फिजिकल एसेट में आती है। नेक्स्ट, why is it important to differentiate between growth oriented and income oriented assets? To align with the investors' financial goals and risk preferences, to assess liquidity, to meet short-term expenses, to determine tax liabilities. तो ग्रोथ ओरिएंटेड का मतलब है बेसिकली आपने किसी इन्वेस्टमेंट, किसी फिनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां पे ग्रोथ हो रहा है, मतलब वहां का जो पैसा है वो आप कुछ अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में रेगुलर बेसिस पे नहीं ले रहे हो, तो ग्रोथ ओरिएंटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट आपका एनएवी बढ़ रहा है, तो वहां पे वापस वो वहीं पे इन्वेस्ट हो रहा है, आप उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके नहीं ले रहे हो। लेकिन इनकम ओरिएंटेड एसेट्स का मतलब होता है कि वहां से आपको कुछ अमाउंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो वहां पे आपको डिविडेंड आ रहा है, तो ये एक इनकम ओरिएंटेड एसेट ही हो गया। अगर आपने कुछ घर लिया हुआ है तो उसके ऊपर का अगर इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये भी इनकम ओरिएंटेड एसेट्स हो गया। उसके बाद आपने कोई म्यूचुअल फंड्स का डिविडेंड का अगर ऑप्शन अगर चूज किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड जब भी बढ़ते हैं तो उसके ऊपर जो भी डिविडेंड आ रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड का एनएवी बढ़ेगा, तो सर्टन पोर्शन जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में आएगा, तो दैट इज ऑल्सो इनकम ओरिएंटेड एसेट हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको इनकम देती है ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट मीन्स यू आर एंटिसिपेटिंग दैट आई शुड गेट सम इनकम। तो यहाँ पे दो टाइप की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट जो ग्रोथ में रहती है, मतलब वहीं पे इन्वेस्टेड रहती है, आपने पैसा लिया नहीं, वहीं पे इन्वेस्टेड होते रहा। और इनकम ओरिएंटेड एसेट में कुछ पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते रहेगा, सो दैट यू कैन यूज दैट मनी। तो करेक्ट ऑप्शन है टू अलाइन विद द इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल गोल एंड रिस्क प्रेफरेंसेस। तो किसी किसी को चाहिए होता है कि हमें जो पैसा है रेगुलर बेसिस पे आना चाहिए, तो वो इनकम ओरिएंटेड एसेट्स में जाते हैं। फाइनेंशियल गोल उनके ऐसे है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर शायद उन्होंने कुछ लोन लिया होगा, उसका कुछ रीपेमेंट करना है, सामने उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, तो ये लोन का रीपेमेंट जो है वो इसके जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स है उससे, या जो भी इनकम ओरिएंटेड एसेट्स उनके रहेंगे उसे पे ऑफ होता रहेगा। रिस्क प्रेफरेंस भी अगर बहुत ज्यादा नहीं रहता तो ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो इनकम ओरिएंटेड एसेट्स के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे रिस्क प्रेफरेंसेस भी मैटर करते हैं in order to choose between the growth oriented aspect of an asset or a income oriented aspect of an asset. Okay, so why is it important to differentiate between growth oriented and income oriented asset? Because it is help you to align with the investor's financial goals and risk preferences. Next, what characterizes fee only financial planners and advisors? They earn commission from product producers. They are primarily involved in product distribution. They do not engage in execution services. They charge a fee for कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज। जब फी ओनली फाइनेंशियल प्लानर्स है, तो एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे वो लोग जो है आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक डिटेल फाइनेंशियल प्लानिंग जो है या डिटेल फाइनेंशियल प्लान बना के देंगे और उसके सामने जो है वो फी चार्ज करेंगे। तो आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है या उसका जो एग्जीक्यूशन करना है, या वो कोई प्रोडक्ट उनको खरीदा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए हेल्प करना है, ऐसा कोई भी काम वो लोग नहीं करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट परचेस के ऊपर उनको कमीशन नहीं मिलता है, कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उनको कोई कमीशन नहीं मिलता है, ओनली फी मिलती है फॉर द प्लान विच दे हैव सजेस्टेड। तो ऑप्शन इज दे चार्ज अ फी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज।
Next, what is the key feature of wrap and platform in financial advisory? They standardize advisory solution using technology. They exclusively provide execution only services. They only deal with physical assets and they charge no fee to clients. तो ऑप्शन एक्चुअली है यहाँ पे दे स्टैंडर्डाइज एडवाइजरी सोल्यूशन यूजिंग टेक्नोलॉजी। रैप एंड प्लेटफॉर्म जो है ये रिलेटिवली नया टर्म है। सिंपल टर्म में बोला जाए तो एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है एडवाइजरी में जो एक ऑनलाइन सिस्टम या सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है टू द इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स और ब्रोकर्स and investors so that they can manage and execute various financial activities. So these kind of a platform, they give range of services एंड यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी, ये सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ये अकाउंट मैनेजमेंट भी करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है, ये लोग प्रोवाइड करके देते हैं। इंडिया में एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है iFast। iFast रैप एंड प्लेटफॉर्म जो है एक फाइनेंशियल टूल है जो डिजाइन किया गया है टू मेक योर इन्वेस्टिंग जर्नी लिटिल ईजियर फॉर द पीपल। सो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि iFast रैप जो है वो अलाउ करता है इन्वेस्टर टू ब्रिंग टुगेदर वेरियस इन्वेस्टमेंट्स। जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, बॉन्ड में करना है या अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में करना है, हो सकता है कि आपको रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड में, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह में भी करना हो सकता है, या आपको किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारे के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है इन्वेस्टर्स को भी और फाइनेंशियल प्लानर्स को भी, मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को भी, कि सारी चीजें, सारे प्रोडक्ट जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो इट इज लाइक हैविंग ऑल योर इन्वेस्टमेंट एग इन वन बास्केट, मतलब बाइंग इट फ्रॉम वन प्लेस। बहुत सिंप्लिसिटी होती है यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद डिफरेंट अकाउंट फॉर ईच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू हैव ओनली iFast रैप अकाउंट जहाँ पे आप लॉग इन करके आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो iFast जैसे जो रैप एंड प्लेटफॉर्म्स है वो हेल्प करते हैं आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को ज्यादा एफिशिएंट और लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। तो ऑप्शन है यहाँ पे दे स्टैंडर्डाइज एडवाइजरी सोल्यूशन यूजिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, why do investors generally prefer to receive rupees 100 now rather than after 1 month? Due to the uncertainty associated with future cash flow, instinctive preferences for future consumption, higher time value of money associated with the present, and potential depreciation of currency. तो जो रेलेवेंट या जो नियर आंसर है वो है हायर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि आज का जो 100 रुपया है वो कल के 100 रुपये से या एक साल के बाद के एक महीने के 100 रुपये से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक दिन के भी अगर आप बात करो तो एक दिन के बाद में भी अगर आपको 100 रुपये या 1 लाख रुपए मिल रहे हैं या 10 लाख रुपए मिल रहे हैं या 1 करोड़ मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू जो है वो आज के वैल्यू से कम होगी। रीजन बीइंग उसके साथ कुछ ना कुछ परसेंटेज जुड़ा हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आज के दिन में 10 करोड़ मिल रहे हैं और कल आपको 10 करोड़ मिल रहे हैं, आप कौन सा प्रेफर करना चाहिए? डेफिनेटली आज का 10 करोड़ आपने प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आपने एक दिन के लिए भी अगर 10 करोड़ रुपए वो बैंक में रख दिया, ओके, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग अगर आप उसके ऊपर करते हो तो आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ पैसा मिलने वाला है। आपने यहाँ पे रेपो, रिवर्स रेपो सुना होगा। ओवरनाइट फंड जब भी बैंक बोरो करती है तभी आपने देखा रहेगा कि बैंक को ओवरनाइट के लिए भी जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये सब जगह पे एक्चुअली क्या इम्पैक्ट कर रहा है? तो यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसीलिए बोला जाता है टुडेज मनी हैज अ मोर वैल्यू देन टुमारोज मनी। तो हायर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट इज द most appropriate answer for this. Next, Bima buys a call option on a company with a strike price of rupees 600 per share for a premium of rupees 55 per share. If the spot price today is rupees 640 per share, the option is said to be in the money, at the money, out of the money. अभी यहाँ पे रीना ने जो स्ट्राइक लिया हुआ है, ओके, ये लिया है 600 रुपीज का, और स्पॉट जो है ये है 640 पे। दैट मीन्स रीना जब ये स्ट्राइक ले रही है 600 रुपीज का और ये कॉल ऑप्शन बाय कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पे इसका इंटेंशन क्या है कि मार्केट में ये पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली है, जबकि ये प्राइस पहले से ही ऊपर है और उसके लिए उसने प्रीमियम पे किया है 55 रुपीज का। तो अभी जाके अगर रीना इस पर्टिकुलर स्टॉक को, इस पर्टिकुलर कॉल को एक्सरसाइज करती है तो शी विल बी इन अ प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज, बट शी विल नॉट गेट 40 रुपीज। वाई? बिकॉज 40 रुपीज जो है ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इस पर्टिकुलर कॉल की 40 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो जो
15 रुपीज है, 55 माइनस 40 करके जो 15 रुपीज है, ये टाइम वैल्यू है। दैट मीन्स टाइम टू एक्सपायरेशन जो है, थीटा जो है, ये 15 रुपीज का है, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 40 रुपीज की है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि अगर स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन में अगर स्पॉट प्राइस से नीचे है, एक्सरसाइज करने से अगर ये पॉजिटिव है, इन दैट केस इसे बोलेंगे इन द मनी कॉल ऑप्शन। अगर यही स्ट्राइक प्राइस जो है ये 640 होती, स्पॉट अगर 650 होता, तो हम यहाँ पे बोलते आउट ऑफ द मनी। और अगर स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस इक्वल होती, दैट मीन स्ट्राइक अगर रीना ने लिया होता 640 का और स्पॉट भी वो टाइम पे 640 होता, तो हम उसे बोलते एट द मनी कॉल ऑप्शन। तो ऑप्शन है इन द मनी। Next, what is the term used to describe a portfolio management strategy that incorporate market timing and view-based allocation? Options are dynamic asset allocation, strategic asset allocation, tactical asset allocation and periodic asset allocation. तो एक कॉमन टर्म यहाँ पे दिख रहा है एसेट एलोकेशन का। तो एसेट एलोकेशन का मतलब है डिसाइड करना कि हाउ मच मनी डू यू वांट टू पुट इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस, दैट मीन स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में या कैश में कितना परसेंटेज ऑफ मनी ऑफ योर पोर्टफोलियो इज गोइंग टू बी देयर। तो जब हम यहाँ पे मार्केट टाइमिंग और व्यू बेस्ड एलोकेशन की बात करते हैं, तो आंसर आना चाहिए टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। तो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में आप बेसिकली शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन अबाउट द मार्केट जो है उस हिसाब से पोजीशन क्रिएट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि यहाँ पे इक्विटी के डायमेंशंस, इक्विटी ज्यादा डायनामिक लग रही है, यहाँ पे इक्विटी के डायमेंशन ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो आप इक्विटी में पोजीशन क्रिएट कर रहे हो। आपका ज्यादातर जो पोर्टफोलियो का फंड है वो इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है। जब भी आपको लग रहा है कि ये डायनामिक्स जो है वो डेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो आप डेट में अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहे हो। मतलब आप टैक्टिकली अपना जो पोर्टफोलियो है इसको मैनेज कर रहे हो। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसे कर रहा है तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज्यादा लर्नड है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर माना जाएगा, और तभी जाके टैक्टिकल एसेट एलोकेशन जो है वो फॉलो करता है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में जो है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन फॉलो किया जाता है, जहां पे इन्वेस्टर को एक पर्टिकुलर जो रेशो है परसेंटेज, जैसे इक्विटी में इतना परसेंटेज एलोकेशन होना चाहिए, डेट में इतना परसेंटेज एलोकेशन होना चाहिए, कैश दैट मीन्स जो हम लिक्विड फंड्स में रखते हैं उसमें इतना एलोकेशन, या गोल्ड में इतना एलोकेशन होना चाहिए, तो वो हिसाब से उसको वो फॉलो करता है। जब भी मार्केट के डायमेंशंस उसको लगता है कि थोड़ा डायनामिक ज्यादा हो सकता है टुवर्ड्स इक्विटी या कभी कभी टुवर्ड्स डेट, तो वहां पे थोड़ा बहुत जो है वो डायनामिक एसेट एलोकेशन में भी वो अपने आप को शिफ्ट कर सकता है, जहां पे जो शॉर्ट टर्म पोजीशन है इक्विटी में अच्छी है या डेट में अच्छी है वो क्रिएट करता है, और फिर से स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन में वापस आ जाता है। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस अबाउट द मार्केट एंड मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ दिस प्रेडिक्शन इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो हवा का जो रुख है मार्केट में उसको देखते हुए आप यहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहे हो। तो द आंसर इज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन।